Hello students, good morning. Jai Swaminarayan, all of you. Welcome to class 4th in Atmi Agri School. My name is Prajakta and I am your maths teacher. So now we'll start lesson number 8, fraction. But before starting our today's topic, first we will see what you had learned our last classes. So now all of you look at in your textbook. First we will see what you had learned our last classes. So first you had learned recall exercise, then after we had learned equivalence fraction, then after we had learned the finding equivalence fraction. In this topic we had learned by using the multiplication and division method we are solving the equivalence fraction. Then after we had learned the checking for equivalence. So in this topic we had learned by using the cross multiplication we are solving the checking for equivalence. Then after we had learned the fraction in the lowest term. So when the one number is the common factor, that number is called the fraction is the lowest term. Then simplification of the fraction. So in this topic by using the division method we are solving the simplification of the fraction. Then after we had learned the type of fraction. So which type of fraction? Like fraction and unlike fraction. Like fraction means are the fraction of the same denominator. Here given some set that all set denominator is the 9 means that is the like fraction. And unlike fraction means now here look at number that all denominator is different means this is the unlike fraction. Then after we had learned the proper and improper. Proper means and what is the improper? Improper means when the denominator is small than the numerator. When the denominator is the small than the numerator is called improper fraction. Proper fraction when the denominator is greater than numerator is called proper fraction. Then mixed fraction. Two fraction is combined with each other is called mixed fraction. That 1 divided by 4 this is the mixed fraction. Then unit fraction. All the numerator is 1 is called the numerator. Then after we had learned the conversion of improper fraction and mixed fraction. Suppose number is the improper fraction, how to convert mixed fraction? We will divide denominator by numerator and whatever the quotient is getting we will write in the whole number and remainder we are writing in the numerator and downside denominator whichever the number is denominator we are writing in the denominator. And when converted the mixed fraction into the improper, so that time we are multiply whole number into the denominator means 2 into 3 6 and then add numerator. So numerator is the 1, so we will get 7 divided by 3. Then after we had learned the comparison of fraction. Then after we had learned the comparing unlike fraction. So then after we had learned the arranging the number by using the LCM method. So exercise 8.7 we had done our last classes. Then after we had learned the fraction as the division, these also we had learned our last classes. So in this topic we had learned the, suppose here giving 3 divided by 12, so that we will convert it into the division form. So how to write? Then we will write 3 divided by 12. And now here 5 divided by 7, so how to write? Then we will convert this in the fraction form. So 5 divided by 7 was the writing. Then this also we had done our last class, addition fraction with same denominator. When the denominator is same, so this is the very simple method. We will write denominator in one time and whatever the number is numerator we will add. So 3 plus 4 7 divided by 8 we will get answer. So now look at here exercise 8.9 आप 8.9 क्वेश्चन नंबर ए आपको टेक्स्ट बुक में सॉल्व करना है एंड क्वेश्चन नंबर बी आपको नोटबुक में लिखना है. ओके, सो क्वेश्चन नंबर ए का फर्स्ट देखो. नाउ 2 डिवाइडेड बाय 7 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 7. 2 divided by 7 plus 1 divided by 7. So
डिनोमीटर इज द सेम, सो डिनोमीटर में हम 7 लिख देंगे। ओके, दोनों का डिनोमीटर कैसा है, सेम है, तो डिनोमीटर में हम क्या लिख देंगे, 7 लिख देंगे। एंड न्यूमरेटर में क्या है, 2, 2 + 1 3, सो विल गेट आंसर 3 डिवाइडेड बाय 7। नाउ नेक्स्ट, both denominator is the 9, so we'll write denominator first, and whatever the number is numerator we will add, so 1 + 5 6, so we'll get answer 6 divided by 9. Okay, now first, second, third, fourth, this is the homework, both are the same. Third, fourth homework. Now look at here, question number 5. 1 divided by 5 plus 2 divided by 5 plus 3 divided by 5, that 3 numbers denominator is the same, तीनों का डिनोमीटर सेम है, 5 है, तो डिनोमीटर में हम क्या लिख देंगे, 5 लिख देंगे। अभी हम न्यूमरेटर में जो भी नंबर है उसको ऐड कर देंगे, 1 + 2 3, 3 + 3 6, so answer getting 6 divided by 5. Then next, 3 divided by 11, 4 divided by 11, 1 divided by 11. Now all denominator is same, so we'll write 11 in the denominator. Now we will add numerator number, 1 3 + 4 7, 7 + 1 8, so answer getting 8 divided by 11. Now 7 and 8 homework, ये क्या है, आपको होमवर्क है, 3 4 7 8 आपको होमवर्क है। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 बी, ऐड, यहाँ पे भी एडिशन है, लेकिन ये हमें हमारे नोटबुक में सॉल्व करना है। सो नाउ लुक एट हियर ऑल ऑफ यू। नंबर 1, 3 divided by 5 and 1 divided by 5। अभी दोनों को क्या करना है, ऐड करना है, तो कैसे लिखेंगे, 3 divided by 5 प्लस 1 divided by 5। अभी दोनों का डिनोमीटर सेम है, तो डिनोमीटर में 5 लिख देंगे, यहाँ पे 3 + 1 कर देंगे, कितना हो जाएगा आंसर, 4 divided by 5। सो फर्स्ट का आंसर कितना आ गया हमारा, 4 divided by 5। देन सेकंड नंबर में है 8 divided by 21 एंड 9 divided by 21। अभी क्या करना है, सेम, दोनों का डिनोमीटर सेम है, तो दोनों को लिख देंगे। ठीक है, दोनों का डिनोमीटर सेम है, तो डिनोमीटर में हम लिख देंगे 21 और न्यूमरेटर में 8 + 9 कर देंगे। 8 + 9 कितना होता है, 17, 17 divided by 21। सेकंड का आंसर कितना मिल गया, 17 divided by 21। नाउ थर्ड नंबर, नाउ लुक एट हियर, थर्ड एंड फोर्थ, दिस इज द होमवर्क। थर्ड एंड फोर्थ होमवर्क है, क्योंकि ये भी सेम है। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 5, हम 5 सॉल्व करेंगे। 5 में क्या है, 2 divided by 7, then 3 divided by 7 and 1 divided by 7। 2 divided by 7, 3 divided by 7, 1 divided by 7। अभी क्या करेंगे, हम तीनों को ऐड कर देंगे, 1 divided by 2 divided by 7 प्लस 3 divided by 7 प्लस 1 divided by 7। अभी तीनों का डिनोमीटर कैसा है, सेम है, तो हम 7 को 1 टाइम लिख देंगे, यहाँ पे 2 + 3 + 1 कर देंगे। अभी तीनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा, 2 + 3 5, 5 + 1 6, 6 divided by 7। आंसर कितना मिल गया, 6 divided by 7। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है 1 divided by 13, then 5 divided by 13 and 6 divided by 13। 1 divided by 13, 5 divided by 13, 6 divided by
13, तीनों को ऐड कर देंगे। 1 डिवाइडेड बाय 13 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 13 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 13। अभी तीनों का डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर में 13 लिख देंगे। 1 प्लस 5 प्लस 6, 1 प्लस 5 प्लस 6 कितना होगा? 1 प्लस 5 6, 6 प्लस 6 12, 12 डिवाइडेड बाय 30। तो आंसर कितना मिल गया हमारा? 12 डिवाइडेड बाय 30। ओके, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 6. नाउ 7 and 8 होमवर्क फॉर यू. क्या क्या होमवर्क है? क्वेश्चन नंबर ए में 3, 7, 4, 8 और क्वेश्चन नंबर बी में भी 3, 4, 7, 8. दे आल्सो होमवर्क फॉर यू. ओके, so this is very easy. Now next is the subtraction of the fraction with the same denominator. These also same method. जैसे हमने एडिशन में किया था सेम मेथड है, सिर्फ जहाँ यहाँ पे एडिशन का साइन है उसके जगह पे सब्ट्रैक्शन का साइन है. द न्यूमरेटर आर द सब्ट्रैक्शन, डिनोमिनेटर रिमेन द सेम. डिनोमिनेटर में एज इट इज़ लिख देंगे, सिर्फ न्यूमरेटर में जो भी है उसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे. 6 डिवाइडेड बाय 8 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 8 कितना होगा? 6 में से 4 निकालेंगे तो 2 डिवाइडेड बाय 8 हमें आंसर मिल जाएगा. यहाँ पे 8 डिवाइडेड बाय 13 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 13 है, सो 8 माइनस 5 करेंगे तो 13 आ जाए. सॉरी 8 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 13. सो हम क्या कर देंगे? 8 में से 5 को निकालेंगे तो 3 बचता है. डिनोमिनेटर में हमारा 13 आंसर रहता है. तो सेम जैसे एडिशन में करते हैं वैसे सेम है, सिर्फ इसको क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है. पहले हमने क्या किया था? ऐड किया था, अभी सब्ट्रैक्ट करना है. सो नाउ लुक एट एक्सरसाइज 8.10. 8.10 का एक क्वेश्चन हम हमारे टेक्स्ट बुक में सॉल्व करेंगे, बी आपको नोटबुक में सॉल्व करना है. सो नाउ लुक एट हियर सॉल्व. ठीक है, यहाँ पे भी देखो 3 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 5 है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर में 5 लिख देंगे. अभी 3 में से 2 को निकालेंगे, 3 में से 2 को निकालेंगे तो कितना बचता है? 1. तो फर्स्ट का आंसर कितना आ गया हमारा? 1 डिवाइडेड बाय 5. देन दोनों का डिनोमिनेटर 7 है, 6 डिवाइडेड बाय 7 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 7. दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर में हम 7 लिख देंगे और यहाँ पे 6 माइनस 2 4. आंसर कितना मिल गया हमें? 4 डिवाइडेड बाय 7. नाउ थर्ड नंबर 10 डिवाइडेड बाय 11 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 11 है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है. डिनोमिनेटर में 11 लिख देंगे और 10 माइनस 1 कितना होगा? 9. आंसर कितना मिल गया हमें? 9 डिवाइडेड बाय 11. नाउ 5 डिवाइडेड बाय 9, 2 डिवाइडेड बाय 9, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, 9 है तो 9 लिख देंगे. 5 में से 2 निकालेंगे तो 3. तो आंसर कितना मिल गया हमें? 3 डिवाइडेड बाय 9. सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 4. नाउ 5, 6, 7 एंड 8 होमवर्क फॉर यू. ये आपको आपके टेक्स्ट बुक में ही लिखना है क्वेश्चन नंबर ए को. ओके, so this is homework for you. 5, 6, 7, 8. This is homework for you. Now look at question number B. Question number B, subtraction. This we will solve in your notebook. ठीक है, अभी हम हमारे नोटबुक में सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर B का फर्स्ट नंबर. सो क्या है? 3 डिवाइडेड बाय 11 एंड फ्रॉम 3 डिवाइडेड बाय 11 हम माइनस करेंगे 8 डिवाइडेड बाय 11 में से. 3 डिवाइडेड बाय 11 फ्रॉम 8 डिवाइडेड बाय 11. 8 डिवाइडेड बाय 11 में से 3 डिवाइडेड बाय 11 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे. सो कैसे लिखेंगे? 8 डिवाइडेड बाय 11 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 11, क्योंकि फ्रॉम लिखा है मतलब 8 डिवाइडेड बाय 11 में से हम 3 डिवाइडेड बाय 11 को सब्ट्रैक्ट करेंगे. ठीक है, अभी दोनों का डिनोमिनेटर 11 है तो 11 लिख दिया. यहाँ पे हम 8 माइनस 3 कर देंगे. 8 माइनस 3 कितना होता है? 5 डिवाइडेड बाय 11. आंसर कितना मिल गया हमें? 5 डिवाइडेड बाय 11. नाउ सेकंड नंबर 2 डिवाइडेड बाय 9 फ्रॉम
5 डिवाइडेड बाय 9। 5 डिवाइडेड बाय 9 में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 डिवाइडेड बाय 9 में से। ओके, सो अभी दोनों का डिनोमिनेटर 9 है, डिनोमिनेटर में 9 लिख देंगे और यहाँ पे 5 माइनस 2 कर देंगे। 5 माइनस 2 3 डिवाइडेड बाय 9। आंसर कितना मिल गया हमें? 3 डिवाइडेड बाय 9। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? 9 डिवाइडेड बाय 13 फ्रॉम 11 डिवाइडेड बाय 13। 11 डिवाइडेड बाय 13 में से 9 डिवाइडेड बाय 13 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कैसे लिखेंगे? 11 डिवाइडेड बाय 13 माइनस 9 डिवाइडेड बाय 13। अभी क्या करेंगे? 11 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे, डिनोमिनेटर में 13 लिख देंगे। 11 में से 9 गया, कितना बचता है? 2। 2 डिवाइडेड बाय 13। आंसर कितना मिल गया? 2 डिवाइडेड बाय 13। नाउ फोर्थ नंबर में क्या है? 16 डिवाइडेड बाय 33 फ्रॉम 28 डिवाइडेड बाय 33। 28 डिवाइडेड बाय 33 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 16 डिवाइडेड बाय 33 को, तो हम लिख देंगे 28 माइनस 33 माइनस 16 डिवाइडेड बाय 33। अभी दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, 13 लिख देंगे डिनोमिनेटर में और यहाँ पे 28 माइनस 16। 28 माइनस 16 कितना होगा? 12 डिवाइडेड बाय 33। सो आंसर कितना मिल गया हमें? 12 डिवाइडेड बाय 33। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। नाउ 5, 6, 7 एंड 8 ये आपको होमवर्क है। ये आपको क्या है? होमवर्क है। सो क्या क्या होमवर्क है आपको? एक्सरसाइज 8.9 में से क्वेश्चन नंबर ए में 3, 4, 7, 8 एंड क्वेश्चन नंबर बी में 3, 4, 7, 8 एंड देन एक्सरसाइज 8.10 में क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 एंड क्वेश्चन नंबर बी में 5, 6, 7, 8. दिस इज द होमवर्क फॉर यू. Now we will start our next topic, addition of fraction with the different denominator. अभी क्या था? दोनों का डिनोमिनेटर सेम था तो हमें सिंपली क्या करना था? जो भी न्यूमरेटर था उसको ऐड करना था और डिनोमिनेटर को 1 टाइम लिखना था। लेकिन जब क्या होता है, डिनोमिनेटर अलग अलग होता है, तब हम क्या करते हैं? बाय यूजिंग द एलसीएम मेथड। जैसे हमने पहले किया था, एलसीएम मेथड यूज़ करके हमने डिनोमिनेटर का सेम लाए थे, वैसे हम एलसीएम मेथड यूज़ करके दोनों का डिनोमिनेटर पहले सेम लाते हैं, फिर उसके बाद हम एडिशन करते हैं। ऐड 3 डिवाइडेड बाय 4 एंड 1 डिवाइडेड बाय 4. दिस कैन नॉट बी डन इन स्ट्रेट वे सिंस द डिनोमिनेटर आर द डिफरेंट. इसको हम क्या नहीं कर सकते हैं? सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर अलग है. वी नीड टू फाइंड द कॉमन डिनोमिनेटर फ्रॉम द फ्रैक्शन. हमें दोनों का डिनोमिनेटर कैसा चाहिए? सेम चाहिए. दिस कैन बी दिस एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर. इसमें हम क्या करेंगे? डिनोमिनेटर सेम लाएंगे एलसीएम मेथड यूज करके. द एलसीएम ऑफ 3 एंड 4 इज 3 और 4 का एलसीएम क्या होगा? मतलब 3 और 4 के टेबल में सबसे छोटा नंबर कौन सा कॉमन आता है? 12. 12 3 के टेबल में भी आता है एंड 4 के टेबल में आता है. कंसिडर द होल डिवीजन इनटू द 12 पार्ट्स. क्या करेंगे? 12 पार्ट से हम दोनों का डिनोमिनेटर क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करके 12 लाएंगे. 1 डिवाइडेड बाय 3 ऑफ द 12 पार्ट्स. 1 डिवाइडेड बाय 3 का 12 पार्ट कितना होगा? 4. कितना होगा? 4 पार्ट्स होगा. मतलब हम क्या करेंगे? 3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, देन हम 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो दोनों का डिनोमिनेटर कितना आएगा? 12 आएगा. देन 12 आने के बाद जो भी नंबर आएगा उसको हम ऐड कर देंगे. ठीक है. सो नाउ लुक एट हियर एग्जांपल नंबर 2. 5 डिवाइडेड बाय 6 and 3 डिवाइडेड बाय
4 है। द एलसीएम ऑफ 6 and 4 इज 6 and 4 का एलसीएम क्या निकला है 12। 6 2 सा 12 एंड 4 3 सा 12 होगा। तो हम क्या करेंगे 5 डिवाइडेड बाय 6 है उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे एंड 3 डिवाइडेड बाय 4 है उसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो दोनों का डिनोमिनेटर क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। सो दोनों को 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, अगर हम 5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 10 आएगा एंड 6 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा। 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आएगा एंड 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ गया। अभी देखो 10 डिवाइडेड बाई 12 एंड 9 डिवाइडेड बाई 12 दोनों का डिनोमिनेटर सेम आ गया। फिर डिनोमिनेटर सेम आने के बाद हम क्या करेंगे इसको ऐड कर देंगे तो कितना आएगा 19 डिवाइडेड बाय 12 आ गया। देखो यहाँ पे हमें 19 डिवाइडेड बाय 12 आंसर आ गया। तो ये जो 19 डिवाइडेड बाय 12 है यहाँ पे देखो हमारा न्यूमरेटर बड़ा आ गया है डिनोमिनेटर से। तो इसको हम क्या करेंगे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे क्या किया है 12 को 19 के साथ डिवाइड किया। ठीक है 12 को 19 के साथ डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 12 1 सा 12 और यहाँ पे देखो 1 क्वेश्चन में 1 आ गया है और हमारे रिमाइंडर 7 आ गया है और डिनोमिनेटर में 12 आ गया। तो जो भी क्वेश्चन है वो होल नंबर 1 लिख दिया है और यहाँ पे 7 ये क्या है हमारा रिमाइंडर है। तो यहाँ पे रिमाइंडर में क्या आ गया 7 आ गया और डिनोमिनेटर में जो सेम नंबर है 12 तो यहाँ पे क्या आ गया 12 आ गया। तो इसको हमने क्या किया है कन्वर्ट किया है इम्प्रॉपर को मिक्स फ्रैक्शन में, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है छोटा है न्यूमरेटर से। सो 5 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 12 इक्वल टू मतलब इसका आंसर कितना आ गया है 1 7 डिवाइडेड बाई 12। आंसर वी विल गेट 1 7 डिवाइडेड बाई 12 हमें आंसर मिल गया। देन यहाँ पे 3 नंबर्स है। ठीक है क्वेश्चन नंबर 3 में एग्जाम्पल नंबर एट 3 डिवाइडेड बाई 8 5 डिवाइडेड बाई 6 एंड 11 डिवाइडेड बाई 12। अभी देखो तीनों का डिनोमिनेटर अलग अलग है तो हमें तीनों का एलसीएम निकालना पड़ेगा। मतलब 8 6 और 12 के टेबल में कौन सा नंबर कॉमन आता है तो कौन सा है 24। 8 3 सा 24 देन 6 4 सा 24 एंड 12 2 सा 24। तो हमें 8 है यहाँ पे दोनों को 3 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे 4 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यहाँ हमें 2 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 9, 8 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 24, 5 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 20, 6 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आ गया। नाउ 11 डिवाइडेड बाय 12 यहाँ पे हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 11 2 सा 22 एंड 12 2 सा 24। देखो अभी तीनों का डिनोमिनेटर सेम आ गया है तो डिनोमिनेटर को हमने लिख दिया है और हमें न्यूमरेटर में कितना मिल गया है 51। तो यहाँ पे सेम 51 डिवाइडेड बाय 24 आ गया आंसर। तो यहाँ पे भी सेम क्या किया है मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया है इसको। पहले तो इन्होंने क्या किया है इसको डिवाइड किया है, लेकिन हम डायरेक्ट इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट भी कर सकते। अगर हम 24 को 51 के साथ डिवाइड करेंगे तो 24 2 सा क्या होगा 48 हो जाएगा। कितना आ जाएगा 48 होता है। तो यहाँ पे 48 लेंगे, 11 में से 8 माइनस करेंगे, 11 में से 8 माइनस करेंगे तो कितना बचता है तो यहाँ पे कितना आएगा 3 आएगा। ठीक है तो अगर हम ये वाला छोड़ के अगर हम इसको ही डायरेक्ट मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो इसका आंसर आएगा 2 देन 3 डिवाइडेड बाय 24 ऐसे आंसर आएगा। ठीक है इसको हम ऐसे भी कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो अभी 3 1 सा 3 3 3 1 सा 3 3 8 सा 24। तो यहाँ पे
2 1 डिवाइडेड बाय 8 आंसर आ गया, ठीक है। अदरवाइज इन्होंने क्या किया है, 24 डिवाइडेड बाय 51 है उसको 3 के साथ डिवाइड किया है, मतलब सॉरी 3 के साथ डिवाइड किया है। 3 को हम 24 के साथ डिवाइड करेंगे तो 8 आता है, और 51 को 3 के साथ डिवाइड करेंगे तो 17 आता है। तो इसका आंसर 17 डिवाइडेड बाय 8 आ गया। हमने क्या किया है, डायरेक्ट किया है। डायरेक्ट करके क्या किया मैंने, इसका कितना आंसर आ गया, 2 3 डिवाइडेड बाय 24। अगर हम 3 के साथ 24 को डिवाइड करेंगे तो 3 1 सा 3, 3 8 सा 24 होता है। तो हमने 1 डिवाइडेड बाय 8, इसको ऐसे भी हम आंसर निकाल सकते हैं। तो ये भी सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आप दोनों भी मेथड यूज़ कर सकते हैं। सो दिस इज, दोनों क्या है, ये इम्प्रॉपर है, इसको कन्वर्ट किया। अभी देखो यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन है, मिक्स फ्रैक्शन को हम कन्वर्ट करेंगे फर्स्ट इम्प्रॉपर में, देन उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो मेथड नंबर फर्स्ट आपको बता रही हूँ, लेकिन मेथड नंबर फर्स्ट से इजी मेथड नंबर 2 है। तो फर्स्ट मेथड में क्या दिया, देखो 3 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 8 है, इक्वल टू, इन्होंने क्या किया है, जो होल नंबर है उसको अलग कर दिया है। होल नंबर में क्या है, 3 और 1 है, इसको अलग कर दिया। अभी 3 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 8 है, ठीक है। अभी दोनों का डिनोमिनेटर सेम लाना है, तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम लाने के लिए हमें एलसीएम मेथड यूज़ करनी पड़ेगी। कौन सी मेथड यूज़ करनी पड़ेगी, एलसीएम मेथड। अगर हमें दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आता है, 8 आता है। 8 के टेबल में 8 आता है और 4 के टेबल में 2 के प्लेस पे 8 आता है। तो हम क्या करेंगे, 3 डिवाइडेड बाय 4 है उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और 1 डिवाइडेड बाय 8 है उसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 3 डिवाइडेड बाय 8 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 6 डिवाइडेड बाय 8 आ गया, ठीक है। अभी देखो सबका दोनों का डिनोमिनेटर कितना आ गया है, 8 आ गया है। 3 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 8, तो 6 डिवाइडेड बाय 8 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 8 आ गया। दोनों का ऐड किया तो कितना आ गया, 7 डिवाइडेड बाय 8, दोनों का आंसर आ गया, ठीक है। और 3 प्लस 1 का आंसर कितना आएगा, 4, 7 डिवाइडेड बाय 8। तो इसको हमें अभी एडिशन का साइन निकाल के यहाँ पे उसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। तो आंसर कितना आ गया, 4, 7 डिवाइडेड बाय 8 हमारा आंसर आता है। ये भी हम कर सकते हैं, ये एक मेथड है। और दूसरी मेथड यहाँ पे देखो क्या किया है, पहले जो मिक्स फ्रैक्शन है उसको हम कन्वर्ट कर देंगे इम्प्रॉपर में। क्या करेंगे, इम्प्रॉपर में हम कन्वर्ट कर देंगे। मतलब 3 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 8 है, इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कैसे करेंगे, 3 इंटू 4 12, 12 प्लस 3 15, 15 डिवाइडेड बाय 4 आ गया। 1 इंटू 8 8, 8 प्लस 1 9, सो इसका आंसर कितना आ गया, 9 डिवाइडेड बाय 8 है, ठीक है। अभी हम दोनों को क्या करेंगे, इसका डिनोमिनेटर 4 है और इसका 8 है, तो हमें दोनों का डिनोमिनेटर सेम लाना है। तो एलसीएम मेथड यूज़ करेंगे। द एलसीएम ऑफ 4 and 8 इज़ 8, दोनों का एलसीएम कितना है, 8 है। सो 15 डिवाइडेड बाय 2 को हमें 2 के साथ 15 डिवाइडेड बाय 4 है उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और 9 डिवाइडेड बाय 8 को हमें 1 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक। तो अभी देखो 15 डिवाइडेड बाय 4 को हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आंसर कितना आ गया, 30 डिवाइडेड बाय 8। अभी दोनों का डिनोमिनेटर 8 8 आ गया है। अभी क्या किया है, 30 प्लस 9 39 डिवाइडेड बाय 8 है, ठीक है। अभी इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर कैसा है, छोटा है न्यूमरेटर से। तो इसको क्या करेंगे, 8 को 39 के साथ डिवाइड करेंगे। 8 को 39 के साथ डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 8 4 सा 32, 39 की नियरेस्ट वैल्यू कितनी आएगी, 32। सो 8 4 सा 39 एंड 9 माइनस 2 7 एंड 0। तो देखो 4 होल नंबर हमने क्वेश्चन में लिख दिया है, रिमाइंडर 7 में लिख दिया है, और जो नंबर हमें डिनोमिनेटर है जिससे डिवाइड किया हमने 8 में लिख दिया। तो आंसर कितना आ गया हमारा,
4, 7 डिवाइडेड बाय 8 हमारा आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर हम सेकंड मेथड है। तो क्वेश्चन मेथड 1 से मेथड 2 इजी है, तो हम जब एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तब मेथड नंबर 2 को हम सॉल्व करेंगे, उस मेथड से हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम को, ठीक है। नाउ लुक एट एग्जाम्पल नंबर 5 2 डिवाइडेड बाय 4 एंड 3 1 डिवाइडेड बाय 5 फिलिंग द ब्लैंक्स, ठीक है। यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स को हमें लिखना है। 5 इंटू 4 हमें यहाँ पे मिक्स है, इनको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे? 5 इंटू 4 20, 20 प्लस 2 22, तो इसका आंसर कितना आ गया? 22। 3 इंटू 5 15, 15 प्लस 1 16, तो इसका आंसर कितना आ गया? 16 डिवाइडेड बाय 5। नाउ 4 एंड 5 का एलसीएम क्या आएगा? 5 और 4 के टेबल में कौन सा नंबर कॉमन आएगा? 20 आएगा। 4 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 5 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को टेबल में 20 आता है। अभी यहाँ पे क्या है? 5 डिवाइडेड बाय 22 है, ठीक है। यहाँ पे देखो 20 आ गया, मतलब इसको 4 के साथ 5 मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे 22 को भी क्या करना पड़ेगा? 5 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 22 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना था? 5 2 सा 10, यहाँ पे 0 1 कैरी, 5 2 सा 10 11, तो यहाँ पे कितना आएगा? 110 110 आ गया। अभी यहाँ पे 5 है, यहाँ पे क्या आएगा? 16 है। अभी इसको 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 20 आएगा। अभी 16 को हमें 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है। 16 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आता है? 64। तो यहाँ पे 110 आ गया, 110 आ गया और यहाँ पे 64 आ गया, ठीक है। हमने क्या किया है? 22 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया है एंड 16 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। यहाँ पे दोनों का डिनोमिनेटर 20 है, यहाँ पे क्या आएगा? 1110 और यहाँ पे 64। 1110 में 64 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 174। कितना आ गया? 174। कन्वर्ट करके कितना आ गया? 174 आंसर आ गया, ठीक है। 174 को हम अभी मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, तो क्या करेंगे हम? 20 के साथ 174 को डिवाइड करेंगे, ठीक है। अभी ये 2 डिजिट है, ये 2 डिजिट छोटा है तो ये डिवाइड नहीं होगा, तो हम डायरेक्ट इसके साथ करेंगे। तो 174 की नियरेस्ट वैल्यू कितनी आएगी? 160। 8 के प्लेस पे आता है 160, तो 4 और यहाँ पे 1 14। कितना आ गया हमारा? 14 आ गया है। तो हमारा होल नंबर क्या आएगा? क्वेश्चन में जो है वो होल नंबर क्या है? 8 है, तो इसका आंसर 8 आ गया है। और रिमाइंडर में कितना बच गया है? 14 और हमारा डिनोमिनेटर कितना है? 20। तो आंसर कितना आ गया है हमारा? 8 14 डिवाइडेड बाय 20 हमारा ये आंसर आ गया। सो दिस इज एग्जाम्पल नंबर 5। देन exercise 8.11, this we will be see in our next period. So I hope all of you nicely understood. Thank you and have a nice day.